Hi, good evening, students. Am I audible to you? The screen visible? Okay. So today we'll discuss tropical monsoon biome. Tropical monsoon. Now, this biome is located at the eastern margins of the continents between 10° north and south latitude to 35° north and south latitudes. East of tropical monsoon is the ocean, and west of tropical monsoon are tropical grasslands. North of tropical monsoon is the China type of climate, and south of tropical monsoon is the equatorial type. Okay, so this is for northern hemisphere and southern hemisphere. Now, tropical monsoon is this biome is on the eastern margins within the tropics. Okay, eastern margins and within the tropics. Okay, and this is the biome where India also lies. Okay, so there are two words, one is tropical, other is monsoon. So within the tropics and monsoonal type of climate. Okay, now the word monsoon is nothing but seasonal reversal of wind system, which ultimately means summers have in this case summers have oceanic winds which blow onshore, right? Means they're coming from the ocean, whereas winters have offshore winds, means land-based winds. Seasonal reversal. Okay, so seasonal reversal essentially means winds change complete direction, एकदम पूरा रिवर्स हो जाता है. Winds change complete direction. So what you have to remember is monsoon essentially is characterized by seasonal reversal of wind system, right?
इसको ड्रॉ कर लो, ये ड्रॉ हो गया। Just let me know when you are done. ओके, अब देखिए ये क्लाइमेट इज मोस्ट डेवलप्ड in South Asia, and it is also found in Australia, South Asia as well as Australia. And equator passes somewhere here. This is equator, 0° latitude. Now see, during summer season, okay, during summer season, what happens is the sun is on the Tropic of Cancer, right? Sun is on the Tropic of Cancer for Northern Hemisphere we are talking about right now. And since the sun is on Tropic of Cancer, this zone becomes a zone of low pressure on land, and relative to this low pressure on landmass, we have high pressure in the ocean. Okay, why? Because land gets heated up very quickly, and compared to the land, the ocean remains at high pressure. Okay, now we know from the winds and pressure belt diagram that this is the belt of the belt in southern hemisphere which I am drawing. This is the belt of southeasterlies. Right? Now, when the summer season is there, these southeasterlies are also pulled towards this low pressure which has been developed over the landmass in South Asia. So southeasterlies pulled towards low pressure. And since southeasterlies are pulled towards this low pressure, when they cross equator and enter northern hemisphere, they tend to bend towards their right. Okay, so क्या होता है,
southeasterlies bend towards their right because of Coriolis force. Coriolis force क्या करता है? It makes the winds bend towards their right when they blow in the northern hemisphere, right? And when these winds bend towards their right, these winds become southwest. ये डायरेक्शन कौन सा हो जाता है? Southwest. And since they are being pulled towards the low pressure, now they essentially blow because of pressure difference between South Asian landmass and the Indian Ocean. And since they are blowing because of the pressure gradient between the ocean and the landmass, they are essentially called as monsoon. And the complete name here is southwest monsoon winds, or southwest monsoonal winds you can call them. Southwest monsoon is responsible for bringing most of the rainfall in South Asia. जब हम South Asia की बात करते हैं, what we essentially are talking about is Indian subcontinent. Indian subcontinent में क्या क्या आता है? इंडिया है, श्रीलंका है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, राइट? नेपाल है नॉर्थ में, भूटान है. So these nations together are called, along with India, they are called subcontinent, and together they are called as a continuous landmass, जिसको हम बोलते हैं Indian subcontinent, right? Indian subcontinent. So एक तो Indian subcontinent है, दूसरा see this region here. You see this region here. यहाँ पर भी winds blow करती हैं. Same winds, they head towards these two peninsulas. Now these two peninsulas, let's say 1 and 2. Number 1 is Malay Peninsula. It is called Malay, M-A-L-A-Y. Okay, Malay Peninsula. This basically comprises of Myanmar, Thailand, okay, Malay Peninsula, and number 2 is Indochina Peninsula, जो मैंने number 2 mark किया है, that is called as Indochina Peninsula. This Indochina Peninsula comprises of Vietnam, Cambodia, and Laos. The three countries here, Vietnam, Cambodia, and Laos. So these countries of Malay Peninsula as well as Indochina Peninsula, they also are impacted by southwest monsoonal winds. Okay, so complete South Asia, बांग्लादेश आपका इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ही आ जाता है. So more or less those countries which share a border with India and also part of Sri Lanka. Also Sri Lanka, which is separated by India from India through a oceanic body, right? So it's very close to Indian subcontinent or the mainland India. It also comes under Indian subcontinent. Southwest monsoon. Now see,
इसको आप बना लेना पहले और समझ लो। So this is the region we are talking about. Okay, so what is this region? Indian subcontinent plus Malay Peninsula plus Indochina Peninsula. Now, when the sun is present here during the month of, कौन से महीने में होगा? जून. हाँ बोलिए. Tropical monsoon. Tropical monsoon. Okay. Now, when the sun is directly on Tropic of Cancer, okay, in the month of June, the South Asia is under a low pressure belt. ये पूरा low pressure belt है ना? Low pressure belt. Now this low pressure belt is called intertropical convergence zone. शॉर्ट में बोलते हैं ITCZ. क्या बोलते हैं? ITCZ. What is ITCZ? It is the low pressure belt which exists due to the presence of the sun. क्या है ये? लो प्रेशर बेल्ट. ठीक है ना? अब इसके नाम को समझते हैं. इंटर ट्रॉपिकल मतलब विद इन द ट्रॉपिक्स, कन्वर्जेंस जोन. कन्वर्जेंस, किसका कन्वर्जेंस हो रहा है? तो बहुत सिंपल है. जो हमारी विंड्स आ रही हैं, कौन सी विंड्स आ रही हैं? साउथ वेस्ट मॉनसूनल विंड जा रहे हैं इधर. साउथ वेस्ट SW, साउथ वेस्ट मॉनसूनल विंड्स. ठीक है ना? ये किसके साथ कन्वर्ज हो रही हैं? These southwest monsoonal winds are essentially converging with, they are converging with ये कौन सी winds? North easterlies. So किसका कन्वर्जेंस हो रहा है? नंबर 1 is southwest monsoonal winds are converging with northeasterlies, right? अब देखिए, southwest monsoonal winds are stronger. Why they are stronger? Because they blow due to pressure gradient. They blow due to pressure gradient. किसका pressure gradient? मतलब pressure difference Indian Ocean and South Asia का जो pressure difference है उसकी वजह से
ये विंड्स ब्लो करती है ना, साउथ वेस्ट मॉनसूनल विंड्स दे ब्लो ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट। तो जो भी विंड्स प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से ब्लो करेंगी दे बिकम स्ट्रॉन्गर। नॉर्थ ईस्टर्लीज क्या है? दे आर रेगुलर विंड्स एज पर विंड्स एंड प्रेशर बेल्ट डायग्राम, दे आर regular winds and they don't have that intensity as southwest monsoonal winds। तो समर के टाइम में क्या होता है कि जो साउथ एशिया का लैंडमास है, इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, म्यांमार, ये पूरा का पूरा रीजन इंक्लूडिंग मलय पेनिनसुला एज वेल एज इंडो चाइना पेनिनसुला, ये हीटेड अप हो जाता है। तो हीटेड अप होने की वजह से लो प्रेशर बिकम्स एक्सट्रीमली लो, काफी ज्यादा लो होता है, और उसके कंपैरिजन में जो हमारा इंडियन ओशन में प्रेशर है वो हाई होता है। तो विंड्स ब्लोइंग एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट दे ऑटोमेटिकली बिकम स्ट्रॉन्गर। तो ये जो जोन है इंडियन ओशन, यस इंडियन ओशन से यहाँ पे साउथ एशिया प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन इंडियन ओशन एंड साउथ एशिया। इंडियन ओशन क्या है? वाटर बॉडी है। तो वाटर बॉडी में क्या रहता है? हाई प्रेशर, और जो ऊपर है जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि लो प्रेशर, इसकी तरफ ब्लो करती है। तो इंडियन ओशन में हाई प्रेशर है, साउथ एशिया में लो प्रेशर। तो विंड्स ऑलवेज ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एंड दे ऑल्सो blow as southwest monsoon, मतलब they have bent right due to Coriolis force, right? तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ब्लो कर रही हैं। तो जो भी विंड्स प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से ब्लो करेंगी दे बिकम स्ट्रॉन्गर। ऐसे ही केस हमने चाइना टाइप में देखा था, साउथ ईस्ट मॉनसूनल विंड्स वहां पे ब्लो करती थी। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे साउथ वेस्ट मॉनसूनल विंड्स है। अब ये किसकी तरफ ब्लो कर रही हैं? ये लो प्रेशर की तरफ जा रही हैं। अब ये कौन से लैटिट्यूड्स हैं? अगर आप देखें तो ये लैटिट्यूड है 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर अराउंड 35 डिग्री नॉर्थ। यही लैटिट्यूड के बीच में आपका ट्रॉपिकल मॉनसून मिलता है। तो एसेंशियली ये वो लैटिट्यूड है जो नॉर्थ ईस्टर्लीज का जोन होना चाहिए था, बट एक स्पेसिफिक कंडीशन डेवलप हो जाती है साउथ एशिया में, और उसका जो कारण है वो ये है कि लो प्रेशर डेवलप हो जाता है। लो प्रेशर क्यों डेवलप होता है? क्योंकि सन का प्रेजेंस है। और ये लो प्रेशर काफी इंटेंस क्यों होता है? क्योंकि एशिया एक बहुत बड़ा लैंडमास है। इंडियन ओशन के जस्ट नॉर्थ में एशिया बहुत बड़ा लैंडमास है। साउथ एशिया में आके वो खत्म हो जाता है, बट इट्स अ बिग लैंडमास। जहां पे लैंडमास बड़ा होता है हम उसको एक वर्ड से एक्सप्लेन करते हैं, वो वर्ड है कॉन्टिनेंटैलिटी। कॉन्टिनेंटैलिटी मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ अ ह्यूज लैंडमास। तो कॉन्टिनेंटैलिटी एशिया की ज्यादा है। अगर कॉन्टिनेंटैलिटी ज्यादा है तो सन के प्रेजेंस की वजह से लो प्रेशर भी इंटेंस होगा, और जितना इंटेंस हमको लो प्रेशर लैंड पे मिलेगा उतना इंटेंस हमको, उतना ज्यादा प्रेशर, उतना कम प्रेशर हमको ओशन में नहीं मिलता। इसलिए रिलेटिव टू द लैंड ओशन रिमेन्स एट हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, और ये विंड सिर्फ लो प्रेशर बेल्ट तक ही ब्लो करेंगी क्योंकि लो प्रेशर की वजह से ही ब्लो कर रही। सो रीजन ऑफ दीज विंड्स इज एसेंशियली लो प्रेशर ओनली। तो लो प्रेशर की तरफ ब्लो करेंगी, और ये जो लो प्रेशर है ये एक बेल्ट है जो साउथ एशिया में रन करती है, और इस लो प्रेशर के ठीक नॉर्थ में आपको नॉर्थ ईस्टर्लीज मिल जाते, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्लीज को साउथ वेस्ट मॉनसून ने नॉर्थवर्ड पुश कर दिया। नॉर्थ ईस्टर्लीज को साउथ वेस्ट मॉनसून ने नॉर्थवर्ड पुश कर दिया, और उसकी जो जगह थी, जो नॉर्थ ईस्टर्लीज का रीजन था जहां पे वो ब्लो कर रही थी, वहां पे अब क्या ब्लो कर रहा है? साउथ वेस्ट मॉनसूनल विंड्स। समर्स के टाइम में इट्स अ टेम्परेरी फिनोमेना,
टेम्परेरी फिनोमिना बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सन। और यही जो साउथ वेस्ट मॉनसूनल विंड्स हैं, यही रेनफॉल लेके आती हैं पूरे के पूरे साउथ एशिया, पूरे के पूरे साउथ एशिया में यही रेनफॉल लेके आती हैं। अब देखिए, this is our India. These are the two peninsulas, right? और अभी हम बात कर रहे हैं साउथ वेस्ट मॉनसून की। जो सन है, सन जून में यहां पे होता है, यही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक। सो जून के टाइम में सन इज हियर। जुलाई के टाइम पे सन कहां पे होगा, डायरेक्ट रेज ऑफ द सन कहां पे होंगी, सन फिर से इक्वेटर की तरफ मूव करने लगता है, डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। अगस्त के टाइम पे सन, डायरेक्ट रेज ऑफ द सन कहां पे होगा, और साउथ में। और सितंबर के टाइम में हमको पता है द सन इज back on equator. The direct rays of the sun are back on equator. जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो आपका जो मॉनसून का सीजन है, मॉनसून सीजन exists for 4 months from June to September, और एक और चीज हम यहां बोलेंगे, with decreasing intensity of rainfall। कहां पे, साउथ एशिया में, साउथ एशिया में with decreasing intensity of rainfall from June to September। जून में सबसे ज्यादा रेनफॉल मिलेगी, जुलाई में उससे कम हो जाएगी, अगस्त में उससे भी कम हो जाएगी, सितंबर में उससे भी कम हो जाएगी। कारण हमारा जो ये लो प्रेशर बेल्ट है, ये भी शिफ्ट होता रहता है। जहां सन वहां पे लो प्रेशर, जहां सन वहां पे लो प्रेशर। तो सन, डायरेक्ट रेज ऑफ द सन, इफ दे आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स इक्वेटर, द लो प्रेशर का जो इंटेंसिटी है ऑन साउथ एशिया, वो भी कम होता जाएगा, वो भी कम होता जाएगा। अब देखिए, अगर लो प्रेशर जून से सितंबर तक शिफ्ट होता है टुवर्ड्स इक्वेटर, तो हमने जो ITCZ बोला था, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, वो यही बेल्ट है लो प्रेशर वाली। तो एसेंशियली हम ऑल्टरनेटिवली ये बोल सकते हैं कि ITCZ, which is intertropical convergence zone, is also shifting with the movement of the direct sun। जहां पे डायरेक्ट सन वहां पे लो प्रेशर, और लो प्रेशर बेल्ट को क्या बोलते हैं, ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, वो भी शिफ्ट होता जाएगा। तो जून पीक होता है लो प्रेशर का साउथ एशिया पे, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अराउंड
मैक्सिमम लो प्रेशर आपको जून में मिलेगा। उसके बाद विद सब्सिक्वेंट मंथ्स जुलाई, अगस्त, सितंबर, द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन आल्सो शिफ्ट टुवर्ड्स इक्वेटर। अब देखिए, ये हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। ये जून का महीना है, ये जुलाई का महीना है, दिस इज अगस्त एंड दिस इज सितंबर। ये हमारा ITCZ है जो मिडवे पास करता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के। तो ये इंडिया के ऊपर है और किसका कन्वर्जेंस हो रहा है ITCZ पे? नॉर्थ ईस्टर्लीज, जिसको कि पुश कर दिया है। किसने पुश किया है? साउथ वेस्ट मॉनसूनल विंड्स ने। तो कन्वर्जेंस जहां पे कन्वर्जेंस होगा, ये वाला जो रीजन है, यहां पे मैक्सिमम रेनफॉल विच इज ऑलमोस्ट एंटायर ऑफ इंडिया। जुलाई में क्या होगा? ये जो ITCZ है, रुक जाओ, अभी कुछ नहीं, मैं करवा दूंगा, डोंट वरी, पहले समझ लो उसको। ITCZ जहां पे लो प्रेशर है, यही ITCZ शिफ्ट हो जाता है नीचे जुलाई में। मतलब नॉर्थ ईस्टर्लीज और साउथ वेस्ट मानसून। तो नॉर्थ ईस्टर्लीज धीरे धीरे इंडिया पे अपना जोन बढ़ाने लगती हैं। अगस्त में क्या होगा? यही ITCZ और नीचे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब नॉर्थ ईस्टर्लीज और साउथ वेस्ट मॉनसूनल विंड्स का जो कन्वर्जेंस है वो भी साउथवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और सितंबर में यही ITCZ इक्वेटर पे चला गया। कहने का मतलब है कि आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट नॉर्थ ईस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में आने लगता है। तो अगर हम देखें जून से सितंबर, फ्रॉम जून टू सितंबर, intensity of monsoon reduces. Current shifting of low pressure belt towards equator. Alternatively, we can say shifting of ITCZ towards equator. जितना ज्यादा जोन साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स के अंडर में होगा उतनी ज्यादा बारिश होगी। और जैसे जैसे हमारा साउथ वेस्ट मॉनसून का जोन रिड्यूस होने लगता है, जोन ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसूनल विंड्स रिड्यूसेस, वैसे वैसे रेनफॉल भी रिड्यूस होने लगती है। सितंबर में सन कहां पे है? जहां पे ITCZ है।
सन की वजह से, डायरेक्ट रेज ऑफ द सन की वजह से ITCZ है। अगस्त में दिस इज सन, और जहां पे सन, डायरेक्ट रेज ऑफ द सन, वहीं पे लो प्रेशर, वहीं पे ITCZ। जुलाई में सन कहाँ पे है? ये रहा सन। और जून में सन कहाँ है? इट इज राइट ऑन टॉप ऑफ इंडिया। तो शिफ्टिंग ऑफ द सन with subsequent months means shifting of low pressure belt which is ITCZ. So जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, जितना हमारा जोन साउथ वेस्ट मॉनसून के जोन का जो जोन है वो रिड्यूस होने लगता है, उतना ही रेनफॉल भी रिड्यूस हो जाता है। इसलिए आप देखते हैं कि जून जुलाई में बारिश आपको मिलती है इंडिया में, राइट। सितंबर आते आते, अगस्त और सितंबर आते आते रेनफॉल कम होने लगती है। अक्टूबर में बिल्कुल ही कम हो जाती है, बिल्कुल ही कम हो जाती है। अक्टूबर में रेनफॉल है ही नहीं। उसका कारण ये है कि अक्टूबर में जो आपका डायरेक्ट रेज ऑफ द सन है वो कहां पे पहुंच गया? सदर्न हेमिस्फेयर में। क्योंकि अक्टूबर में द सन हैज क्रॉस्ड इक्वेटर एंड इज नाउ डायरेक्टली शाइनिंग इन द सदर्न हेमिस्फेयर। नवंबर में और नीचे चला गया। दिसंबर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पहुंच जाता है, जो ऑस्ट्रेलिया से पास होता है। तो समर बढ़ने लगती है कहां पे? सदर्न हेमिस्फेयर में। लेकिन जब तक समर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है तब तक यहाँ पे रेनफॉल होती है। सबसे ज्यादा रेनफॉल जब पीक ऑफ लो प्रेशर है, ITCZ इंडिया के ऊपर है। और सबसे कम रेनफॉल इन 4 महीने में, इन दीज 4 मंथ्स द लीस्ट रेनफॉल इज इन सितंबर। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो आप देखो, जब आप सितंबर को देखते हैं ना राइट हैंड साइड पे, तो ये वो महीना है जहां पे नॉर्थ ईस्टर्लीज पूरी की पूरी इक्वेटर की तरफ ब्लो कर रहे हैं। ये नॉर्मल हो जाता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है इस टाइम पे। जो हम विंड्स एंड प्रेशर बेल्ट में पढ़ते हैं, नॉर्थ ईस्टर्लीज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, साउथ ईस्टर्ली सदर्न हेमिस्फेयर में, आपको सितंबर में वो नॉर्मल सी मिलती है। लेकिन जून जुलाई अगस्त में, क्योंकि सन जैसे ही असेंड करता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, तो लो प्रेशर इंक्रीज होता है। लो प्रेशर इंक्रीज, साउथ वेस्ट मॉनसूनल विंड्स उतने ज्यादा इंटेंसिटी से ब्लो करेंगी और रेनफॉल लेके आएंगी। अब इसको आप बना लो एक एक करके, ठीक है ना। कहां तक बना लिया था? ये बना लिया था आपने, ये डायग्राम बना लिया था। इसको बना लो आराम से, ठीक है।
बन गया? इज इट डन? बन गया? हाँ हाँ, वियतनाम, 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 कंबोडिया, लाओस, LAOS। बन गया? ठीक है, इसको बना लीजिए। यहाँ पे आपको ITCZ दिखाना है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इसको बना लो, ये हो गया? जल्दी बना लो उसको। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ITCZ की शिफ्टिंग दिखाइए फ्रॉम इंडियन सब कॉन्टिनेंट टुवर्ड्स इक्वेटर। ठीक है, कर लो, जल्दी कर लो, थोड़ा सा जल्दी हाथ चला लो। June, July, August, September, ITCZ shifts from Indian subcontinent towards equator. South Asia. हाँ, साउथ वेस्ट मानसून।
साउथ वेस्ट मॉनसूनल विंड्स है। अरे नहीं नहीं, साउथ वेस्ट, नहीं नहीं, वेस्टर्ली मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। जो प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से विंड ब्लो कर रही है ना, एशिया में उसको मॉनसूनल विंड्स बोलते हैं ना। साउथ वेस्ट मॉनसूनल विंड्स, साउथ वेस्ट मॉनसूनल विंड जो लिखा है, जो पढ़ा है, उसको आप वैसे ही यूज करो, साउथ वेस्टर्ली नहीं। ये बन गया, करो उसको भी। ये आपका पूरा मॉनसून का कॉन्सेप्ट है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून। ओके, बोल। क्या चीज? एमएस? पिछले क्लास का? लास्ट क्लास की, कल का? वन वीक पहले? मुझे मुझे पीडीएफ शेयर करके पूछ लेना, बाद में पूछ लेना क्लास की। अभी क्लास तो चल रहा है, बाद में पूछ लेना। ऑफ मॉनसून रिड्यूसेस, हाँ, इंटेंसिटी ऑफ मॉनसून रिड्यूसेस फ्रॉम, वो भी जोन ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसूनल विंड्स रिड्यूसेस। इस डायग्राम के नीचे लिख लीजिए, during summers in South Asia, during summers in South Asia, comma, the direct rays of the sun, the direct rays of the sun in the month of June,
during summers in South Asia, comma. The direct rays of the sun during June, the direct rays of the sun during June, comma, create a belt of intense low pressure, create a belt of intense low pressure around 25 to 30 degree north latitude, around 25 to 30 degree north latitude, 30 degree north latitude, full stop. The low pressure belt is called ITCZ. The low pressure belt is called ITCZ, which is the convergence zone of, which is the convergence zone of southwest monsoonal winds, which is the convergence zone of southwest monsoonal winds blowing from the Indian Ocean, blowing, which is the zone of, which is the convergence zone of southwest monsoonal winds and northeasterlies, and northeasterlies. Full stop. Due to the presence of due to the presence of ITCZ, comma, monsoonal rainfall occurs in South Asia. Monsoonal rainfall occurs in South Asia with decreasing intensity from, with decreasing intensity from June to September. June to September. From June to September. Full stop. These southwest monsoonal winds, these southwest monsoonal winds bring 80% of, bring 80% of monsoonal rainfall, 80% of monsoonal rainfall in South Asia, in South Asia. Full stop. Next paragraph.
Continentality of South Asia. Continentality of South Asia creates high pressure difference, high pressure difference between Indian Ocean and the South Asian landmass, between Indian Ocean and South Asian landmass, between Indian Ocean and South Asian landmass, due to which due to which southeasterlies due to which southeasterlies blowing in the southern hemisphere southeasterlies blowing in the southern hemisphere are pulled towards the Indian subcontinent are pulled towards the Indian subcontinent, including Malay Peninsula and Indochina Peninsula, including Malay Peninsula and Indochina Peninsula. बोलिए हाँ जी क्या हो गया including Malay Peninsula and Indochina Peninsula. Including Malay Peninsula and Indochina Peninsula. Full stop. When southeasterlies cross equator, and begin to blow in the northern hemisphere, they bend right due to Coriolis force and blow as southwest monsoonal winds. Full stop. Next paragraph. The intensity of southwest monsoonal winds is highest. The intensity of southwest monsoonal winds is highest
in the month of June, when low pressure in South Asia is most intense, as it lies over, L-I-E-S, lies over the South Asian landmass, as it lies over the South Asian landmass. Full stop. Is most intense. मैं धीरे धीरे बोल रहा था. क्या लिखा है बता दो जरा. मैं I don't remember right now. I'm just dictating, looking at the diagram. Low pressure. जिसने लिखा है वो एक बार बता दो कोई. Low pressure in South Asia is most intense in the month of June when the ITCZ covers or lies over the South Asian landmass. Full stop. With subsequent months of July, August and September, with subsequent months of July, August and September, July, August and September, the ITCZ shifts equatorward. The ITCZ shifts equatorward with the movement of the direct sun. With the movement of the direct sun. With the movement of the direct sun. Full stop. By September, comma, the low pressure belt has shifted to equator. The low pressure belt has shifted to equator. And the Indian subcontinent is no more, and the Indian subcontinent is no more under the influence of southwest monsoonal winds. Is no more under the influence of southwest monsoonal winds. अब देखिए
ये जो साउथ ईस्टर्लीज हैं, अभी भी हम समर की बात कर रहे हैं। यही साउथ ईस्टर्लीज जब इक्वेटर को क्रॉस करते हैं तो बन जाते हैं साउथ वेस्ट मॉनसूनल विंड्स, ठीक है ना। अब इफ वी फोकस ऑन ऑस्ट्रेलिया, तो इस टाइम पे जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर्स है तो सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, विंटर्स, है ना। अब ये जो आपका ऑस्ट्रेलिया का लैंडमास है, ये किसके इन्फ्लुएंस में है, साउथ ईस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में है कि नहीं। यहाँ पे विंटर्स चल रहे हैं, ठीक है ना। अब ऑस्ट्रेलिया का जो ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, ये जो पूरी बेल्ट है ऑस्ट्रेलिया की, ये वाला, दिस इज नथिंग बट दिस इज नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में इन्हीं साउथ ईस्टर्लीज को बोला जाता है विंटर मॉनसूनल विंड्स। क्या बोलते हैं, नीचे लिख देता हूं, विंटर मॉनसूनल विंड्स। लेकिन एक चीज है कि जो विंटर मॉनसून, हाँ हाँ, तो इनका स्पेसिफिक ना, हाँ विंटर का टाइम है ना इसमें ऑस्ट्रेलिया में, और स्पेसिफिकली जब वो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ब्लो करती हैं, जब तक वो ओशियन में नहीं गई, ठीक है ना। नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में दे आर कॉल्ड साउथ ईस्ट मॉनसूनल विंड्स। क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट मॉनसूनल विंड्स। मैं इस जोन की बात कर रहा हूं, जो ग्रीन कलर का जोन मैंने यहां हाईलाइट किया है ना, इस जोन में। और ये जो साउथ ईस्ट मॉनसूनल विंड्स हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, दे एसेंशियली ब्लो ऑफशोर, है ना। ऑफशोर मतलब लैंड से ओशन की तरफ जा रहा है, और क्योंकि दे आर ब्लोइंग ऑफशोर फ्रॉम लैंड टू ओशन, फ्रॉम लैंड टू ओशन, these winds, southeast monsoonal winds in northwest Australia, do not bring rainfall. लैंड से ओशन की तरफ, और यही विंड्स इक्वेटर की तरफ ब्लो करती हैं, और जैसे इक्वेटर को क्रॉस करती हैं, जब वो टुवर्ड्स राइट बेंड करती हैं, तो यही विंड्स बन जाती हैं साउथ वेस्ट मॉनसूनल विंड्स। और ये जब साउथ वेस्ट मॉनसूनल विंड्स बन जाती हैं तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, मलय पेनिनसुला में, इंडो चाइना पेनिनसुला में, यहां पे रेनफॉल लेके आती है। बट जब इनका ओरिजिन होता है नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में, वहां पे दे आर ऑफशोर। डायग्राम बना लीजिए। लिख लो इसके नीचे, सबका हो गया, डायग्राम बन गया, जल्दी बना लो जल्दी।
लिख लीजिए इसके नीचे, द साउथ ईस्टर्लीज while blowing over northwest Australia, the southeasterlies while blowing over northwest Australia blow as offshore winter monsoonal winds. The southeasterlies while blowing over northwest Australia blow as offshore winter monsoonal winds called southeast monsoonal winds. Called southeast monsoonal winds. Full stop. When they blow over the ocean in the southern hemisphere, when they blow over the ocean in the southern hemisphere, before reaching equator, they are called southeasterlies. They are called southeasterlies. And after crossing equator, become southwest monsoonal winds. And after crossing equator, become southwest monsoonal winds. Now put the next heading as, इसका winters समझते हैं, winters in northern hemisphere. Okay, tropical monsoon में winters in northern hemisphere. और साथ में आप हेडिंग में लिख लीजिए समर्स इन सदर्न हेमिस्फीयर. ठीक है ना, तो दोनों साथ में हो जाएगा. विंटर्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड समर्स इन सदर्न हेमिस्फीयर, एक ही टाइम पे होता है दोनों. ये हेडिंग डाल दीजिए. हाँ, बोलो, बोलिए. जो पहले क्या बोलता समर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर था ना. अरे जब समर्स होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो सेम टाइम. हाँ, वही लिखा है मैंने. हेडिंग डालो इसको, मैं इसको रब कर रहा हूं. अब देखिए, समर्स इन सदर्न हेमिस्फीयर जब हम बोलते हैं तो सन हमारा यहां पे है. ये कौन सा टाइम है? दिसंबर. ठीक है ना, तो सन कहां पे है? अराउंड 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, राइट. अच्छा, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स हो जाएगा. ठीक है,
और लैंड मास के ऊपर क्या मिलेगा? हाई प्रेशर, बिकॉज लैंड जल्दी कूल डाउन हो जाती है, और उसके रिलेटिव ओशन में क्या मिलेगा? लो प्रेशर। तो इसकी वजह से क्या होगा? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड ब्लो करेंगी। रिमेंबर ये सितंबर वाला केस, सितंबर वाला केस देख रहे हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड में, जहां पे हमने नॉर्थ ईस्टर्लीज लिखा है। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर वो टाइम होता है जब सन, डायरेक्ट रेज ऑफ द सन आर फारदेस्ट फ्रॉम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और जब डायरेक्ट रेज ऑफ द सन आर फारदेस्ट फ्रॉम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इन दिसंबर, ये जो हमारा साउथ एशियन लैंडमास है, South Asian landmass becomes coldest, और जब ये ठंडा हो जाता है, पानी इसके कंपैरिजन में गर्म रहता है, वहां पे लो प्रेशर रहेगा, यहाँ पे हाई प्रेशर। ठीक है, इन्हीं विंड्स को हम दिसंबर के टाइम में बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मॉनसूनल विंड्स। नॉर्थ ईस्ट मॉनसूनल विंड्स। लेकिन साउथ एशिया के लिए ये नॉर्थ ईस्ट मॉनसूनल विंड जो है, ये क्या है? ऑफशोर। सिंपल सी बात है, क्योंकि साउथ एशिया के लैंडमास से वो ब्लो कर रही हैं कहां पे? टुवर्ड्स ओशन, है कि नहीं? टुवर्ड्स ओशन जा रही हैं। तो जाहिर सी बात है, इसलिए हमारे इंडिया में भी दिसंबर, जनवरी, फरवरी में बारिश नहीं होती। विंटर्स आर जनरली कोल्ड एंड ऑल्सो ड्राई, बारिश नहीं होती क्योंकि विंड्स ऑफशोर है। छोटा सा एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि ये जो आप देख रहे हो ना, इंडिया का ईस्टर्न कोस्ट लाइन, जो मैंने येलो से मार्क किया है, द स्टार, ये स्टार क्या है? ईस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। यहां पे ये जो हमारी नॉर्थ ईस्ट मॉनसूनल विंड्स हैं, ये बे ऑफ बंगाल से थोड़ा सा मॉइस्चर उठा के थोड़ी बारिश लेके आते हैं। इसलिए अगर आप देखें, ये मैं इंडियन मॉनसून में जब इंडियन ज्योग्राफी आपको पढ़ाऊंगा और मैं इलैबोरेट करूंगा कि विशाखापट्टनम हुआ, चेन्नई हुआ, भुवनेश्वर हुआ, ये जितने भी सिटीज हैं आपके ईस्टर्न कोस्टलाइन पे इंडिया में, इनमें विंटर्स में बारिश होती है। चेन्नई में 80% जो रेनफॉल है वो विंटर्स में ही होता है। किसकी वजह से? नॉर्थ ईस्ट मॉनसूनल विंड्स की वजह से। क्योंकि बाकी इंडिया में ये ऑफशोर ब्लो करती हैं, लेकिन ईस्टर्न कोस्टलाइन का ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसा है कि वो एकदम बे ऑफ बंगाल के एडजेसेंट है, और नॉर्थ ईस्ट मॉनसूनल विंड्स की भी डायरेक्शन ऐसी है कि वो बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर उठा के यहाँ पे स्ट्राइक करेगी। चेन्नई में विंटर्स में बारिश होती है। विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है कोस्टलाइन पे, वहां पे विंटर्स में बारिश होती है। उड़ीसा कोस्टलाइन पे विंटर्स में बारिश होती है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये बड़े स्टेट्स हैं हमारे, राइट, ईस्टर्न कोस्टलाइन पे। ये एक एक्सेप्शन है। इसको अगर आप छोड़ दें, बाकी जितना भी इंडिया है, मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, दिल्ली, इवन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यहां पर विंटर्स में बारिश नहीं होती। कर्नाटका में भी नहीं होती,
कर्नाटका विंड की डायरेक्शन के एकदम ऑपोजिट है। जब तक वहां विंड पहुंचती है नॉर्थ ईस्ट मॉनसूनल विंड्स, वो थोड़ा बहुत मॉइस्चर तो ईस्टर्न कोस्ट लाइन पे लेके आएंगी, लेकिन कर्नाटका में, महाराष्ट्र में मॉइस्चरलेस हो जाती है। तो इंडिया में जनरली 80% जो ज्योग्राफिकल लैंडमास है इंडिया का, वो ड्राई रहता है विंटर्स के टाइम में, विद एन एक्सेप्शन ऑफ ईस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। अब ये जो हमारे नॉर्थ ईस्ट मॉनसूनल विंड्स हैं, ये जब पहुंचती हैं इक्वेटर, तो हमारा सन कहां पे है? सन इज इन द सदर्न हेमिस्फेयर। तो सन के सदर्न हेमिस्फेयर में होने की वजह से ये जो ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का जो लैंडमास है, ये लो प्रेशर बन जाता है कि नहीं? क्योंकि यहां पे सन का प्रेजेंस है भी। तो यही विंड्स जो भी आपने बनाए हैं नॉर्थ ईस्ट मॉनसूनल विंड्स, जब ये इक्वेटर क्रॉस करेंगी तो ये दे विल बेंड टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि सदर्न हेमिस्फेयर में ब्लो कर रही हैं। तो बेंड टुवर्ड्स लेफ्ट क्यों? बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स। और विंड जब सदर्न हेमिस्फेयर में ब्लो करेगी तो इट विल बेंड टुवर्ड्स लेफ्ट एंड it will start blowing towards ऑस्ट्रेलिया, है ना? और जब ये ऑस्ट्रेलिया के लैंडमास को स्ट्राइक करेंगी इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, यही विंड्स बन जाएंगी अपने डायरेक्शन की वजह से। क्या नाम होगा इनका? नहीं, ध्यान से देखो उसको। ये वाले विंड्स नॉर्थ वेस्ट मॉनसूनल विंड्स। और ये नॉर्थ वेस्ट मॉनसूनल विंड्स जो हैं, नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में समर्स में रेनफॉल लेके आती हैं, नॉर्थ वेस्ट में। अब ये जो ग्रीन रीजन है, यहां तो लो प्रेशर डेवलप हुआ, लेकिन जहां मैं रेनफॉल की बात कर रहा हूं वो ये वाला बेल्ट है आपका, ये वाला बेल्ट, ठीक है। एक नैरो बेल्ट है ऑस्ट्रेलिया की जहां पे रेनफॉल होती है नॉर्थ वेस्ट मॉनसूनल विंड्स की वजह से, लेकिन जैसे ही विंड्स ऑस्ट्रेलिया में अंदर की तरफ मूव करने लगती है, इनका मॉइस्चर खत्म हो जाता है। इसलिए जो डेजर्ट है वो डेजर्ट ही रह गया, क्योंकि विंड्स में जितना मॉइस्चर था वो यहां पे एब्जॉर्ब हो गया, लेकिन ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है आपका पूरा, ये तो डेजर्ट ही है जो मैं अभी ब्लू कलर में बना रहा हूं, राइट? ये आपका डेजर्ट है जो रेड कलर में बनाया है। बस उसी नैरो बेल्ट में थोड़ी सी बारिश होती है। तो जो नॉर्थ वेस्ट मॉनसूनल विंड्स हैं वो समर मॉनसूनल विंड्स हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, और वही समर मॉनसूनल विंड साउथ एशिया के लिए कौन सी थी? साउथ वेस्ट मॉनसून। तो नॉर्थ वेस्ट मॉनसूनल विंड्स क्या बन गई? समर मॉनसूनल विंड्स फॉर नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। विंड्स देखिए कहां से आ रही हैं, नॉर्थ ईस्ट मॉनसूनल विंड्स इंडिया के ऊपर से आ रही हैं, इक्वेटर की तरफ ब्लो करेंगी, ऑफशोर विंड्स हैं। इंडिया के 80% लैंडमास पे रेनफॉल नहीं लेके आती, विद एन एक्सेप्शन ऑफ ईस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। जैसे इक्वेटर पे ये विंड स्ट्राइक करती हैं, दे बिकम, और जैसे ही सदर्न हेमिस्फेयर में एंटर करती हैं, दे चेंज डायरेक्शन, दे बेंड टुवर्ड्स लेफ्ट ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स एंड दे बिकम नॉर्थ वेस्ट मॉनसूनल विंड्स। डायग्राम को कंप्लीट करिए, फिर लिखेंगे। अरे वो तो कोल्ड ही होगा ना, सन है नहीं ना वहां पे, सन के बिना कैसे हीटअप होगा? समझाना क्या है उसमें? सन तो नीचे है ना, सन के बिना कैसे हीटअप होगा? सन नीचे बना है ना, दिसंबर का टाइम है ना। ठीक है, बाकी लोग खत्म करिए डायग्राम को।
सबका हो गया अंकिता? बाकी लोग चलो लिख लो उसको. Please write down. During winters in northern hemisphere, comma, the high pressure on South Asian landmass is at its peak. The high pressure on South Asian landmass is at its peak comma, compared to which there is low pressure at its peak, P-E-A-K, comma, compared to which there is low pressure in the Indian Ocean, low pressure in the Indian Ocean, full stop. Due to high pressure difference between South Asian landmass and the Indian Ocean, comma, strong northeast monsoonal winds blow. Strong northeast monsoonal winds blow as offshore winds for most of the landmass in South Asia, as offshore winds for most of the landmass in South Asia, with an exception of eastern coastline of India, full stop. These winds pick up moisture from Bay of Bengal. And bring winter rainfall in the Indian states of Orissa, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. Full stop. Orissa, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. Full stop. Upon reaching equator, they bend towards their left. Due to Coriolis force, they bend towards their left and henceforth they bend towards their left due to Coriolis force and henceforth henceforth
blow as northwest monsoonal winds, henceforth blow as northwest monsoonal winds, bringing summer rainfall, bringing summer rainfall in a narrow strip of northwestern Australia, in a narrow strip of northwestern Australia. It is important to understand, it is important to understand the origin of these winds in the form of these winds in the form of northeast monsoonal winds, northeast monsoonal winds which subsequently become northwest monsoonal winds for Australia. Northwest monsoonal winds for Australia. ठीक है? We'll continue tomorrow. Thank you. Okay, thank you.